So today's topic is sorting and aggregation. You already know what do you mean by sorting, arranging records in ascending and descending order. So in data frames series also we can do sorting. Let us see how. So there are 2 points. First, sorting means arranging records in ascending or descending order. Data of data frame can be sorted according to values of rows or columns. By default, sorting is done on row labels in ascending order. It means top to bottom. There are 2 kinds of sorting. First is by value. By value means based on column. Second is by index. It means based on row. Sort values. So this is the function which we are going to use to sort values of our data frame. It sorts a data frame in ascending or descending order of past column. See the syntax. Data frame dot sort values. There are 5 attributes used in this function. We will discuss one by one. First is by. In by, we define a column to be sorted. Then we use axis. If axis is equal to 0, see the second point, it means we are doing sorting based on index, or we can say we are sorting row wise. But if the value of axis is 1, then sorting will be done column wise. Next attribute is ascending. It has 2 values, true or false. By default, ascending is true. If you want to use descending order, then you have to write ascending is equal to false. There is no word like descending. If you want to sort in descending order, then you have to write ascending is equal to false. Now in place, the value of default value of in place is false. Now if you do not want to create a new data frame, then set its value as true. Otherwise, a new data frame will be created. इसका मतलब अगर आप नया डेटा फ्रेम नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू को ट्रू कर दीजिए, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो उसी डेटा फ्रेम में चेंजेस हो जाएंगे. बट नॉर्मली वी डू नॉट वांट दिस. हम ऐसा नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि हमेशा एक अलग डेटा फ्रेम क्रिएट होकर के हमें डिस्प्ले करे. ओरिजिनल डेटा फ्रेम को हम टच नहीं करना चाहते हैं. इन दैट केस इन प्लेस वैल्यू इज फॉल्स, और आप यूज नहीं भी करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट ही फॉल्स होता है. लास्ट, NA पोजीशन. NA stands for not a number, NaN. तो NA पोजीशन की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, लास्ट और फर्स्ट. यहाँ देखिए इधर ऊपर सिंटेक्स में NA अंडरस्कोर पोजीशन इज इक्वल टू लास्ट. इट मीन्स जो किसी कॉलम में NaN वैल्यूज होंगी वो सबसे लास्ट में जाएंगी सॉर्टिंग होते समय. तो लास्ट में लिखा हुआ आएगा NaN लाइक दैट. बट इफ यू राइट हियर NaN पोजीशन इज इक्वल टू फर्स्ट, तो NaN वैल्यूज पहले आ जाएंगी. We will see in further examples. Okay, let us move to the next slide. So this is example 1, sorting based on a particular data frame. यहाँ एक data frame हमने लिया है, वही जो कल बताया था आपको CSV फाइल के थ्रू. तो we just write import pandas as pd, df is equal to pd dot read underscore csv. तो अब तक तो शायद ये आपको लर्न हो चुका होगा. read underscore csv is used to read data from a table which was stored as CSV while creating in MS Excel. MS Excel की
टेबुलर फॉर्म में जो टेबल आपने बनाई उसको .csv से क्रिएट किया गया होगा, उसका नाम था emp.csv। उसको यहाँ pandas में हमें इंपोर्ट करना है, तो वी राइट इट लाइक दिस pd.read_csv और उस फाइल का पूरा पाथ। फिर इसको प्रिंट df करके देखा तो आपका ये आउटपुट आ गया। सो दिस इज योर आउटपुट। रितेश, आकाश, महिमा, तो एक बार इस पर नजर डालते हैं। emp id इज देयर, नेम इज रितेश, आकाश, महिमा, लक्ष्य, रितेश, लक्ष्य, आकाश, लाइक दैट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू सॉर्टिंग। रिजल्ट इज इक्वल टू ये प्रिंट ब्लैंक, इससे क्या होगा, इससे आपके आउटपुट में एक स्पेस आ जाएगा, एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी लाइक दिस। यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आ गई, अदरवाइज ये एक साथ फिर नजर आते हैं, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट इज इक्वल टू df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाई इज इक्वल टू नेम। आपको बताया था बाई का यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ बाई, सी वंस अगेन, इट डिफाइंस कॉलम्स टू बी सॉर्टेड, किस कॉलम के बेस पर सॉर्टिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने असेंडिंग नहीं यूज किया है, ना ही एक्सेस यूज किया है, बाकी दोनों तो अभी आप छोड़ दो। एक्सेस की फिर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब ये इंडेक्स वैल्यूज यूज करेगा, और असेंडिंग हमने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इट विल यूज असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू होगा बाय डिफॉल्ट। सी द रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। तो सॉर्ट वैल्यूज बाय नेम, नेम को चेक करते हैं, तो आकाश ए से पहले आ गया, फिर एल, एम एंड आर। तो दिस इज द होल टेबल which is being sorted based on name। ऐसा नहीं कि बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी चेक वन रो। एम्प्लॉय आईडी 101 देखते हैं। 101 इज आकाश, आकाश की एज 26, गोवा एंड 16,000 सैलरी। तो आकाश 26, गोवा 16,000 सैलरी, यानी कि पूरी रो शिफ्ट हो गई। तो दैट मीन्स एक्सेस इज इक्वल टू 0। इंडेक्स वाइज ये पूरा जो इंडेक्स नंबर 1 है ये ऊपर चला गया, एंड इंडेक्स नंबर 6 ये देखिए, ये वाला आकाश 30, बेंगलुरु 28,000, जो सबसे लास्ट में था, आकाश 30, बेंगलुरु। सॉर्टिंग अगेन बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम लाइन्स। सी दिस लाइन, df result is equal to df dot sort values by name and ascending is equal to false। see result is equal to, इट मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा पूरा, क्या आउटपुट आया, ये वाला नीचे वाली टेबल, इस आउटपुट को हमने रिजल्ट नाम के डेटा फ्रेम में स्टोर किया है। तो रिजल्ट इज अनदर डेटा फ्रेम, हमने यहाँ इन प्लेस यूज नहीं किया, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं होते, नया डेटा फ्रेम बनकर आता है। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन प्रिंट रिजल्ट हियर। अगर आप यहाँ प्रिंट df लिखोगे तो ऊपर वाली टेबल आएगी जिसमें सॉर्टिंग नहीं है। ओके, सो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स से क्या होगा, नेम के बेसिस पे देखिए, RMLA आकाश नीचे आ गया और रितेश सबसे ऊपर। दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल। Focus on this line. Result is equal to df dot sort values by is equal to salary. Ascending is equal to 0. If you write ascending is equal to 0 and 0 means false, तो या तो आप ascending is equal to false लिखिए या ascending is equal to 0, एक ही बात है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देगा। ये वाली जो टेबल है ये पुरानी वाली आ गई है कॉपी पेस्ट करते समय, अदरवाइज योर आउटपुट विल बी दिस। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा। Now see this example.
we are using same table emp.ch. Result is equal to df.sort values. By is equal to salary. Ascending is equal to 1. NA position is equal to first. तो NA पोजीशन जो आपकी फर्स्ट है, इसकी वजह से क्या होगा, जो NaN वैल्यूज हैं वो पहले आएंगी. बट इफ यू राइट NA पोजीशन इज इक्वल टू लास्ट, तो आपकी NaN वैल्यूज लास्ट में जाएंगी. लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा, इसका एग्जांपल नहीं है. इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट एट होम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेशन is large. It should be when data is large. ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है. तो when data is large, बहुत सारा डेटा जब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक ही टेबल में पूरे स्कूल का डेटा उस पर वर्क करना है, तो that becomes very cumbersome. So in that case we need to aggregate data so as to analyze it effectively. एग्रीगेशन हमने पहले भी किया है, अगर आपने याद हो तो कुछ एग्जाम्पल में एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए थे, जैसे मीन, सम, एक्सेट्रा. We have already learned some aggregate functions like count, sum, mean, median, minimum, maximum, standard deviation, variation and MAD. हम सारे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारे ऑलरेडी लास्ट टाइम हम कर चुके हैं. You need to practice on that. यहाँ पर हम सिर्फ एक नया aggregate function यूज करेंगे, that is called mean absolute deviation, MAD. You are not going into detail of this. This is not in your syllabus. ये डिटेल में कैसे कैलकुलेट करना है, बस MAD फंक्शन आपको डायरेक्ट लगाना है, ऑटोमेटिकली आउटपुट आएगा. इट इज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इकोनॉमिक्स में यूज होता है. MAD फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज प्रोवाइडेड. इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा वैल्यू and the mean. How to use it? Very simple. We just write MAD and axis value and skip NA. There are two parameters used in this. Parameters number one, axis. Axis is equal to 0 or index for row wise and 1 for column or column wise. Default is 0. Now skip NA. NA means not NaN, not null values. It excludes, अगर आपने skip NA is equal to true का रखा है, it excludes all these values, NA, none or NaN values. Now see one example. We have only one example for aggregation. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. See, we have created a data frame. This is the output of this data frame with columns name, age and scope. So mean absolute deviation ऐसे कैलकुलेट होगा. You just write df.mad. बस इतना लिखना है आपको. इतना लिखने से कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी and you will find the values like this. Age is equal to 1.92, score is equal to 15.20. ये वैल्यूज कैसे आई, इसका क्या फॉर्मूला होता है, all this is not in your syllabus. And if you have mean absolute deviation in your economics, then you are lucky. तो आपको क्लियर हो जाएगा. Otherwise no need to go into detail. कुछ नहीं करना है इसका. आएगा भी तो एक नंबर का आएगा एग्जाम में. Okay, this was the last topic for today.